स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेट करना। अभी हम देखने वाले आईबीसी का क्वेश्चन यार, आ जाइए पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल तो जाके समझ में आएगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, पहला सवाल आईबीसी का आपके क्वेश्चनर में ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। When will be the provision of the insolvency and liquidation of the corporate person is applicable to a corporate person? तो हमने ऑलरेडी ये देख लिया है, जब 1 लाख से ज्यादा का डेट हो और सीजी जब चाहे उसको बढ़ा सकता है अप टू 1 करोड़, तो ऐसे सिचुएशन में हम उसको आईबीसी के अंदर कवर करते हैं। दूसरा, Mr. SP booked office space with Elegant Constructions Limited. At the time of booking, 36 lakhs was paid. Remaining amount of 10 lakhs was paid at the time of taking delivery. He entered into a memorandum of understanding with the company having various terms and conditions of the sale. Allotment. According to MOU, Elegant Constructions Limited was acquired to build and deliver the possession of the unit within 2 years from the date of execution of MOU. It was also stipulated a payment of assured sum of 82,000 per month till the possession of the unit was delivered to Mr. SP Elegant Constructions Limited, failed to pay the assured return. Thereafter, SP filed an application for initiation of insolvency resolution process. Decide about validity of the said application in the view of the provision of the Insolvency and Bankruptcy Code. तो केस कुछ इस प्रकार था कि भाई एडवांस पेमेंट किया गया मिस्टर एसपी ने एलिगेंट कंस्ट्रक्शंस को और बोला मुझे ऑफिस स्पेस चाहिए। पहले कुछ 10-20 लाख रुपए दे दिए और उसके बाद में 36 लाख रुपए थे, उसके बाद में आई गेस 10 लाख रुपए ऑन द पोजीशन देने वाले थे। और साथ में यह एग्रीड था कि जब तक के कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होकर डिलीवरी नहीं मिलता, एसपी को एलिगेंट कंस्ट्रक्शन 82,000 पर मंथ पे करेगा। पर वो पे नहीं किए 82,000 पर मंथ, इसलिए एसपी वालों ने केस कर दिया आईबीसी में इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी का। अब सबसे पहली बात, तो क्या ये जो प्रॉमिस क्या है 82,000 का, क्या ये डेट है? पहली बात तो ये, तो मेरा आंसर है सिंपली इस केस में कि 82,000 का अमाउंट ये डेट नहीं है, इट वाज सिंपली अ ट्रेड, इट इज अ सिंपल अ ट्रेड एग्रीमेंट। अब इसमें 5 सबसेक्शन 7 डिस्कस किया है, जो है कॉर्पोरेट, जो है अपना फाइनेंशियल क्रेडिटर का। उसके बाद 5-8 डिस्कस किया है, जो है फाइनेंशियल डेट का। हालांकि फाइनेंशियल डेट का फुल सेक्शन डिस्कस नहीं किया है। अगर यही क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए है तो आपने फाइनेंशियल डेट की फुल डेफिनेशन देनी चाहिए, यह चीज आपने नोट करके रखना। फिर उसके बाद में देखो नीचे लिखा है प्योरली सिंपली इट इज एन एग्रीमेंट ऑफ सेल और परचेस ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर इसके हिसाब से मैं आंसर देखूं तो यहां पे एलिगेंट कंस्ट्रक्शन फेल्ड टू पे द assured return. Thereafter, Mr. SP filed an application for initiating a CIRP. Mr. SP filed an application for initiation of CIRP process merely because some assured amount of return has been promised and it stands breach. Such a transaction would not acquire a status of financial debt. इस ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल डेट नहीं बोलते आएगा। Hence, it seems that application filed by Mr. SP stands invalid. क्योंकि ये ट्रेड है, ये फाइनेंशियल डेट नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कहीं कंसेप्ट नहीं है। 82,000 पर मंथ देने वाले थे एज अ कंसिडरेशन, जो भी है। अगला नवंबर 18 वाला सवाल, XY Limited filed a petition under Insolvency and Bankruptcy Code 2016 with NCLT against DF Limited and the petition was admitted. There were only 3 financial creditors, सिर्फ 3 financial creditors थे, including XY Limited. During a corporate insolvency resolution process, the corporate debtors settled the claims of all the 3 financial creditors. Whether such a settlement agreement could be termed as a valid resolution plan? Settled the agreement of all 3 financial creditors. Also discuss whether financial creditors in respect of whom there is no default can file an application before adjudicating authority for initiation of CIRP. अब सिंपली आप देखोगे थोड़ा आईबीसी के सवाल थोड़े से टफ आते हैं, फेमा जैसे सिंपल नहीं है, आपको दिमाग लगा के यहां पे बात करनी पड़ेगी। यहां बोला गया है कि 3 ही फाइनेंशियल क्रेडिटर्स थे। ड्यूरिंग इन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस द कॉर्पोरेट डेटर्स सेटल ऑल 3 ऑफ देम। तीनों को पे कर दिया। एप्लीकेशन हो सकता है एक नहीं किया होगा, तीनों को सेटल कर दिया। क्या इसको हम कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान बोल सकते हैं? तो देखो नीचे आंसर के अंदर बेटा सिंपली पहले तो मेंशन किया है सेक्शन नंबर 7, 5 और 7, जिसके अंदर क्लॉज 26 मेंशन किया है, मींस अ प्लान प्रपोज्ड बाय रेजोल्यूशन एप्लीकेंट फॉर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एंड अकॉर्डेंस विद द पार्ट 3। साथ में ये बोला गया है सेक्शन 7 प्रोवाइड्स दैट फाइनेंशियल क्रेडिटर either by itself or jointly, देखो जॉइंटली वर्ड हमने वहां पे भी मार्क किया था हमारे बुक में, as may be notified, jointly with the other financial creditor or other son
person on behalf of financial creditor as the may be notified by central government may file an application for initiating CIRP against corporate debtor. ठीक है. Explanation 7 provides that default include default in respect of financial debt owned not only to applicant but also to any other financial creditor. किसी भी financial creditor को debt owned है तो भी उसको default ही बोला जाएगा. Hence financial creditor in respect of whom no default can file an application before adjudicating authority. So there is no default, वो application adjudicating authority को नहीं कर सकता. स्टार मार्क इस चीज को याद रखना. ठीक है. अगला given case discuss as follows. ठीक है. पिटिशन एक्सेप्ट किया, तीनों फाइनेंशियल क्रेडिटर के ड्यूज पे किए. हेंस इट अपीयर्स दैट सेटलमेंट एग्रीमेंट कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ वैलिड रेजोल्यूशन प्लान एंड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हैज टू फॉलो द प्रोसेस प्रिस्क्राइब अंडर द कोड. फाइनेंशियल क्रेडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम नो डिफॉल्ट कैन फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी. तो दो चीजें हमको यहां पे पता चल सकती है. सेटलमेंट एग्रीमेंट does not equal to CIRP. FC with no default will not apply for CIRP. ये दो चीजें हमको यहां समझनी है. क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना. कॉर्पोरेट इंश्योरेंस रेजोल्यूशन प्रोसेस में चौथा सवाल, Who may initiate a corporate insolvency resolution process against a corporate person? कौन इनिशिएट कर सकता है? सिंपल सवाल है, डायरेक्ट सवाल है, आपको ऑलरेडी पता है कौन कौन कर सकता है. तो सबसे पहले बेटा फाइनेंशियल क्रेडिटर, दूसरा ऑपरेशनल क्रेडिटर. फाइनेंशियल क्रेडिटर जिसके खिलाफ डिफॉल्ट हुआ है. क्लियर है कंसेप्ट? ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड कॉर्पोरेट डेटर हिमसेल्फ, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है. सेक्शन 7 इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी प्रोसेस के ऊपर सवाल है. एमटीपी मार्च 18 का सवाल है. State the manner of initiation of corporate insolvency resolution process by financial creditor under the insolvency bankruptcy code. What is the insolvency resolution process for financial creditors? ये ऑलरेडी डायरेक्ट सवाल है, ऑलरेडी हमारे प्रोसेस के अंदर हम इसको देख चुके हैं. अगले सवाल पे मूव करते. पूरा डिस्क्रिप्शन में देखो क्या क्या लिखा है, एक बार फिर भी देख लेता हूं. Initiation of CIRP, filing of application by adjudicating authority. उसके अंदर financial creditor अप्लाई कर सकते हैं jointly और together. ये बोला गया है. डिफॉल्ट होना जरूरी है. ठीक है. फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, टाइम पीरियड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डिफॉल्ट. लंबा आंसर जा रहा है इसका. ठीक है. फिर कमेंसमेंट ऑफ सीआरपी, जिस दिन से एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ, कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर. अगला सवाल नवंबर 18 का सवाल है. ठीक है. बेस्ट बैंक अ फाइनेंशियल क्रेडिटर सेंट अ डिमांड नोटिस फॉर, अच्छा नवंबर 18 ओएस मतलब ओल्ड सिलेबस. हाँ. Demand notice for claim of 10.2 CR XYZ Limited, a corporate debtor on 6 February 2018. When a petition was filed before NCLT under Insolvency Bankruptcy Code 2016, Best Bank claimed that the XYZ Limited has defaulted 29 crores 0.8 crore instead of original amount of 10.2 crore. NCLT appointed interim resolution professional. XYZ Limited made an appeal with the NCLT demanding the Best Bank's claim is not maintainable as there is a difference in the amount mentioned in the demand notice and the application file under the code. Decide whether the contention of XYZ Limited is correct. Also state who can file a corporate insolvency resolution process under the code. So simply demand notice, पहले देखो petition किया. Best Bank financial creditor demand notice for a claim of 10.2 crore on XYZ. Corporate debtor on 6 February 2008. Petition was filed before NCLT under Insolvency Bankruptcy Code. Best Bank claimed that XYZ Limited defaulted in 29.8 crore instead of original 10.2 crore. Amount भेरा हुआ है बच्चों. तो आइए requirement in the case of financial creditor. सबसे पहले financial creditor either himself or jointly with other financial creditor may file an CIRP application. Furnish records of the default, name of the resolution professional. Default includes default in respect of financial debt owed not to the applicant but to any other financial creditor. Person who may initiate CIRP, corporate insolvency resolution process, a financial creditor, a operational creditor, a corporate debtor. ये भी मेंशन करके रखा है क्योंकि उन्होंने पूछा है कौन कौन अप्लाई कर सकता है. नीचे आ जाइए.
बेस्ट बैंक फिर फैक्ट्स दिए हैं कि भैया इतना ड्यू था, इतना क्लेम किया। एनसीएलटी ने इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किया, इन्होंने अपील किया, ठीक है। XYZ लिमिटेड मेड एन अपील टू एनसीएलटी, XYZ का ड्यू था बैंक के खिलाफ पर 10.2 था, यहां 29.8 बोला। इंटरिम XYZ appeal to NCLT demanding that Best Bank's claim is not maintainable as there is difference in the amount mentioned in the demand notice and application filed. Contention of XYZ Limited is not correct as there is no requirement of the demand notice in the case of financial creditor. ठीक है, ये चीज बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। डिमांड नोटिस की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है फाइनेंशियल क्रेडिटर के केस में, ठीक है। और ये डिमांड नोटिस वैलिड है इनवैलिड है ये सेटलमेंट के ऊपर हम डिसाइड करते हैं। अगर ये ऑपरेशनल क्रेडिटर होता तो आंसर सही होता था, लेकिन यहाँ डिमांड नोटिस की जरूरत ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर 29.8 करोड़ ड्यू नहीं है तो फाइनेंशियल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर दोनों ने इसको सेटल करके एनसीएलटी को अमाउंट बोलना है। सेटलमेंट के लिए इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बना के उसको एनसीएलटी को बोलना है। ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। इसी ही चीज को हम कहते हैं रिजोल्यूशन प्लान। तो बहुत सारे बच्चों को इसके आंसर समझ में नहीं आते, ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखना। बहुत टफ होते हैं आईबीसी के क्वेश्चन नॉर्मली। मॉक टेस्ट का वाला सवाल है, विजडम लिमिटेड कमिट्स अ डिफॉल्ट अगेंस्ट अ डेट टेकन फ्रॉम द फाइनेंशियल क्रेडिटर Mr. F he initiate a corporate insolvency resolution process against a Wisdom Limited as the company defaulted in payment of financial debt of rupees 2 lakh. In the meantime, Mr. X, another financial creditor, thereof files an application for the initiating of corporate insolvency resolution process with adjudicating authority. पहले Mr. F ने फाइल किया, what the F, और फिर Mr. X ने फाइल किया। Examine with reference to validity of filing an application of Mr. X. देखो मैंने सीआरपी में ऑलरेडी एक चीज बोली है, कोई एक एप्लीकेशन आया और दूसरा एप्लीकेशन बाद में आया तो उसको लाइन में खड़ा किया जाता है, सेपरेट एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं किया जाता। तो देखिए, According to section 6, where corporate debtor default, financial creditor, operational creditor, corporate debtor may initiate CIRP. Section 7, financial creditor by itself or jointly with other financial creditor may file an application when default has occurred. In the given case, mention किया है कि इन्होंने application किया। As per the fact given in the question, default has been committed only against Mr. F, not against Mr. X. Mr. X के खिलाफ कोई default नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में मिस्टर एफ इज एंटाइटल्ड टू फाइल एन एप्लीकेशन सिंस गिवन इन द डिफॉल्ट हैज ऑकर्ड ओनली अगेंस्ट मिस्टर एफ, सो नो एप्लीकेशन ऑफ सीआरपी कैन बी इनिशिएटेड बाय मिस्टर एक्स। आप सीआरपी का एप्लीकेशन तभी कर सकते हो जब आपके खिलाफ डिफॉल्ट है। तो यहां पे लिख के रखूंगा एप्लीकेशन ओनली व्हेन डिफॉल्ट अगेंस्ट FC is made, ठीक है। 8 और 9 सेक्शन के ऊपर सवाल है, आ जाइए। सेट द मैनर ऑफ इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ऑपरेशनल क्रेडिटर किस तरीके से कर सकता है ये तो हमको ऑलरेडी पता है, हमने इसका पूरा प्रोसेस देखा हुआ है, तो इसको रीड कर लेना एक बार। अगले सवाल के ऊपर मैं जाता हूं। TAS Constructions Private Limited operational creditor on 2nd April being a default date. The default date issued a demand notice through speed post to Dheeraj Constructions Private Limited, an unpaid operational corporate debtor, demanding a payment of the invoice dated for 5,60,000, 15 days payment term towards supply of certain works contract service as per the provision of section 8(1). Insolvency Bankruptcy Code and rules framed thereunder. Dheeraj Construction Private Limited on receipt of the demand notice inform operational creditor that vide their email dated 30th March addressed to company and all its director they have disputed the invoice on quality of service rendered and were withholding the payment till dispute is settled without the initiating a CIRP proceeding या legal proceeding. अब देखो क्या बोला है, अब यहां 10 दिन के टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है डिमांड नोटिस के बाद। आपको पता है ना ऑपरेशनल क्रेडिटर ने डिमांड नोटिस देने का 10 दिन में आपको रिस्पॉन्ड करना होता है। ऑपरेशनल क्रेडिटर ऑन 2nd April द डिफॉल्ट डेट इशूड द डिमांड नोटिस, 2 अप्रैल को नोटिस इशू किया है डिमांड नोटिस, और इन्होंने 30th मार्च को एड्रेस किया है, ठीक है। The operational creditor on expiry of the period of 10 days from the delivery of the demand notice, on the receipt of the demand notice, informed operational creditor about on 30th March उन्होंने already बोल दिया है, मतलब 30th मार्च को उन्होंने ऑलरेडी बोला था there is dispute, फिर 2nd अप्रैल को ऑपरेशनल क्रेडिटर ने डिमांड नोटिस इशू किया है। तो इन्होंने 10 दिन
अब ऑब्वियसली बात है 2 अप्रैल से 10 दिन उन्होंने रुके होंगे, 12 अप्रैल तक के रुके होंगे और 12 अप्रैल तक उन्होंने देखा होगा 10 days of delivery of notice and non-payment of dues approached to adjudicating authority. In such a case, will the application of the operational creditor filed under 9(1) read with 8(2) of insolvency bankruptcy code be permitted? तो अब सवाल है कि भैया ऑलरेडी रिप्लाई कर दिया था, जब डिमांड नोटिस है उसके पहले ही रिप्लाई कर दिया था, तो अब क्या आंसर आना चाहिए? पहले तो हमने ये लिख लिया कि ऑपरेशनल क्रेडिटर कैसे अप्लाई कर सकता है, फिर डिमांड नोटिस और 10 days के अंदर उसने रिप्लाई करना है, ये भी हमने लिख लिया इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में, ठीक है। फिर हम आ गए नीचे एक्सप्लेनेशन आंसर पे, और देखो यहां पे आंसर, ठीक है। धीरज कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ऑन रिसीट ऑफ डिमांड नोटिस 30 मार्च को उन्होंने किया है, ये ऑलरेडी बोल दिया, ऑफ द डिस्प्यूट इनवॉइस विथ होल्डिंग द पेमेंट, एप्लीकेशन फाइल्ड बाय टीएस कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, ऑपरेशनल क्रेडिटर इज नॉट परमिटेड ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ द डिस्प्यूट, क्योंकि ऐसा माना जाएगा डिस्प्यूट के लिए ऑलरेडी नोटिस 30 मार्च को भेजा हुआ है। तो सवाल अच्छा था, काफी अच्छे से इसको देखना। फिर May 18 का सवाल है, रोज गार्डन लिमिटेड वाज इनकरिंग continuous losses and financial position went bad to worse. Blackstone Private Limited, a trade creditor, issued a notice under 271 of the Companies Act for winding up of the Rose Private Limited on the ground that Rose Garden Limited was unable to pay the debt. After some time, Blackstone Private Limited, being an operational creditor, filed a petition before the adjudicating authority to initiate an insolvency process under IBC. Demand notice and the copy of the invoice were not served on the Rose Garden since notice was earlier issued for the winding up. All the formalities were complied with. Adjudicating authority to initiate a CIRP by admitting the application and appointed resolution professional. After complying with requirement formalities, adjudicating authority issued an order for moratorium and other relief within a stipulated time. Being aggrieved by the order of adjudicating authority, Rose Garden Limited filed an appeal before NCLT under Insolvency and Bankruptcy Code. हुई बात ये कि एक बंदे ने एप्लीकेशन फाइल किया है वाइंडिंग अप चैप्टर में कंपनी को बंद करने के लिए, और दूसरे ने फाइल किया है एप्लीकेशन अंडर आईबीसी चैप्टर में सेटलमेंट के लिए। हालांकि आईबीसी में प्रोसीडिंग एनसीएलटी ने शुरू कर दिए थे, पर किसी ने अपील किया कि जब वाइंडिंग अप में ऑलरेडी अपील पेंडिंग है तो आईबीसी में आपने प्रोसीडिंग कैसे शुरू किए? तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से आईबीसी के प्रोसीडिंग कंटिन्यू होनी चाहिए क्योंकि आईबीसी ओवरराइड्स द कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो जरा आंसर के ऊपर आइए, वही लिखा है उन्होंने, ऑपरेशनल क्रेडिटर का एप्लीकेशन, फिर उसका डिमांड नोटिस, डिस्प्यूट एक्सेट्रा, 10 days में रिप्लाई वगैरह। अब जरा आ जाइए यहां पे, इन्होंने पूरा फाफट पर क्या देके रखा है ये देखिए, in a present case, demand notice and the copy of invoice were not served to Rose Garden on a ground that notice was earlier issued for winding up. Notice issued earlier for winding up cannot be treated as demand notice. हाँ, a demand notice and a copy of invoice was not served. Order issued by adjudicating authority does not seem to be proper. हाँ, इस केस में IBC prevail तब करता था जब आपने डिमांड नोटिस और इनवाइस प्रॉपरली दिया रहता। मीन्स इफ डिमांड नोटिस एंड इनवॉइस ये सर्व किया है तो ही केस आईबीसी का बनता है, अदरवाइज नॉट सर्व्ड प्रॉपरली तो इट विल बी द केस ऑफ वाइंडिंग अप। हेंस रोज गार्डन लिमिटेड विल सक्सीड इन इट्स अपील, इट विल सक्सीड इन इट्स अपील, ये चीज को आपने याद रखना। फिर उसके बाद में अगला केस लॉ के ऊपर जाते हैं, आ जाइए। Standard International Limited, who is a foreign trade creditor having the office in Hong Kong, wanted to file a petition under IBC code on default of the debtor in India. It moved a petition under section 9 of the code seeking commencement of insolvency process. The foreign company was not having the office or the bank account in India because it couldn't submit a certificate of financial institution as required under the code. Examine whether petition is permissible under insolvency bankruptcy code. तो हमें तो भैया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब चाहिए। The requirement of the certificate from financial institution subject to availability permissible. Furnishing of certificate financial institution is not mandatory बोला है। ओ माय गॉड, स्टार मार्क करके रखना, खास केस है ये, इसको अच्छे से पढ़ना कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सर्टिफिकेट ये सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी होता है, नॉट मैंडेटरी। तो यहाँ पे लिख के रखूंगा। एक और सीख हम जो आज पढ़े हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट इज रिकमेंडेड नॉट मैंडेटेड, ठीक है, स्टार मार्क।
ओके, मैं चाहूंगा इसको याद रखना, एक बार आप आंसर रीड कर लीजिए, अच्छा सवाल है। चलो रेडी कर लिया, इसके बाद में अगले सवाल के ऊपर जाते हैं। टफ है हाँ, आईबीसी के सवाल 2-4 बार पढ़ने पड़ेंगे आपको। व्हाट इज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर ऑपरेशनल क्रेडिटर, ऑलरेडी देख चुके हैं हम, डायरेक्ट सवाल है, देख लेना एक बार, बड़ा आंसर है इसका। इन द व्यू ऑफ द deep recession prevailing in the market from past 3 years, Messrs Infra Limited corporate data, Messrs Infra corporate data है, ठीक है। सो कॉर्पोरेट डेटर विच वॉज फेसिंग अ बर्ंट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस कुड नॉट पे अ सैलरीज एंड वेजेस टू द वर्कमैन, नॉट पे सैलरीज एंड वेजेस टू द वर्कमैन एम्प्लॉइज फॉर द पास्ट 6 months. The workmen and the employees who are members of recognized trade union Infra Labor Federation made a complaint in this regard. Thereafter, the trade union approached the urged management of the company in person through representation in writing to settle the arrears of wages and the salaries of the member. The corporate debtor neither disputed nor took an action to settle the amount. Under the circumstances, Infra Labor Federation filed an application before the adjudicating authority with a National Company Law Tribunal to initiate a CIRP. Workmen और employees ने अप्लाई किया है, क्या workmen employees अप्लाई कर सकते हैं? Yes, because workmen and employees are operational creditor और community of creditors में, constitution of committee of creditor में जब financial creditor नहीं रहते तो हम workmen और employees के representatives को लेते हैं, अगर आपको याद होगा तो। In the light of the provision of Insolvency Bankruptcy Code, examine the following. Validity of application valid है. What will be the initiation date for initiating corporate insolvency resolution process? Initiation date जिस दिन application accept हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऑपरेशनल क्रेडिटर का डेटा लिखा है। What is operational creditor? डेफिनेशन देना जरूरी है। ऑपरेशनल डेट का डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। ऑपरेशनल क्रेडिटर का मीनिंग दिया है, 10 दिन का डिमांड नोटिस वगैरह सब मेंशन किया है, यहाँ पे प्रोसेस मेंशन किया है। मैं सीधा आता हूं आंसर पे। इन केस ऑफ मजदूर मोर्चा वर्सेस जुग्गीलाल कमलपत जूट मिल्स, केस का नाम बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। नॉर्मली आईबीसी में लेटेस्ट केस लॉज लिए जाते हैं बेटा, लेटेस्ट केस लॉज जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो एज पर सेक्शन 15 ऑफ द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, जो लेटेस्ट केस लॉज आपको कहां से मिल सकते हैं? आईबीबीआई के वेबसाइट। ये वही केस है जो लेटेस्ट केस लॉज में था, मतलब आपको ये केस लॉज नियरली देखने पड़ेंगे एग्जाम के 2-3 महीने पहले, 3-4 महीने पहले। अगर आपका नवंबर के एग्जाम है तो 30 अप्रैल तक के जितने केस लॉज एप्लीकेबल होते हैं वो आपको देखने पड़ेंगे, और ये रिलीज करती है इंस्टीट्यूट। अगर पॉसिबल हुआ तो इसके ऊपर मैं देखूंगा, लेक्चर दे सकता हूं तो, नहीं तो आपने एक बार इसको रीड करने की कोशिश जरूर करना, ठीक है। लेटेस्ट केस लॉज आईबीसी में पूछते हैं, कई बार आपके न्यूज़लेटर में भी दिए करते हैं, तो आप न्यूज़लेटर से भी पढ़ सकते हो उसको, ठीक है। सो आंसर देखना, application made to the adjudicating authority by Infra Labor Federation, insolvency process is void नहीं, valid means the date on which financial creditor, corporate applicant, operational creditor as the case may be makes an application to adjudicating authority for initiation of corporate insolvency resolution process. इसे हम initiation date कहते हैं, और हमारा insolvency commencement date रहेगा कौन सा डेट? जिस दिन NCLT एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। सो सवाल अच्छा था, इस चीज को याद रखना। वर्कमैन और एम्प्लॉइज को भी हम लेते हैं काय में? ऑपरेशनल क्रेडिटर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर, सेक्शन नंबर 10 पे है, एडमिशन रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस? ऑलरेडी हमने कई बार देखा है इसको, आगे बढ़ते हैं। Person not entitled to make an application. State the circumstances when a person is not entitled to make an application to initiate a CIRP.
Suppose a corporate debtor has committed a default and is undergoing through corporate insolvency resolution process. A corporate applicant, Mr. X, thereof, files an application for initiation of corporate insolvency resolution process with adjudicating authority. State whether Mr. X is entitled to make application to initiate CIRP. कॉर्पोरेट डेटर कमिटेड ए डिफॉल्ट एंड इज अंडरगोइंग थ्रू सीआईआरपी प्रोसेस ऑलरेडी. अगर आप ऑलरेडी सीआईआरपी प्रोसेस में है तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो सकता है नहीं. 4 केस में ऑलरेडी यू आर इन सीआईआरपी प्रोसेस, पिछले 12 महीने में सीआईआरपी किया है, पिछले 12 महीने में कॉन्ट्रावेंशन किया है. अगर आपने किसी भी सीआईआरपी प्रोसेस का या आपके खिलाफ लिक्विडेशन ऑर्डर किया है तो सीआईआरपी नहीं हो सकता. तो देखो, अंडरगोइंग थ्रू सीआईआरपी, हैविंग कंप्लीटेड सीआईआरपी इन लास्ट 12 मंथ्स, ठीक है, violated the terms of resolution, liquidation order has been passed. नीचे time limit for completion of CIRP. Is there any time limit for completion of insolvency resolution process? Obviously 180 days plus 90 days, और अभी तो अमेंडमेंट के हिसाब से 330 days मैक्स. ठीक है, तो आ जाइए यहां पे ऐड करना, ऐड 330 days वाला. ठीक है, 330 डेज वाला अमेंडमेंट यहां पे ऐड करना. ठीक है, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं, इसको स्टार मार्क. ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? दैट इज क्वेश्चन नंबर वो है 16 नंबर के क्वेश्चन में मेरे को ये चाहिए. ठीक, लिख के रखना, गो फॉर इट फास्ट. चलो डन. फिर जाते हैं सेक्शन नंबर 12A के ऊपर. बड़ा अच्छे तरीके से ध्यान देना. नवंबर 17 का सवाल है. नेचर इंडिया लिमिटेड फाइल्ड पिटिशन अंडर द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड विद अ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अगेंस्ट ट्यूलिप लिमिटेड एंड द पिटिशन वाज एडमिटेड. पिटिशन एडमिट हो गया. After that, Nature India Limited wanted to withdraw a petition based on settlement arrived between the parties. Whether it is permissible to withdraw the petition as once it is admitted. Also explain rules relating to admission and rejection of the application by adjudicating authority. 90% अगर एक्सेप्ट करे तो पिटिशन विड्रॉ हो सकता है. देखो 90% वोटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स इन सच अ मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड. ठीक है,
एप्लीकेशन कब एक्सेप्ट होता है FCOC का, ये भी मेंशन करके रखा है, ठीक है। नीचे such a withdrawal of application can be permitted by NCLT if petition requesting the same made by adjudicating authority in the nature limited withdrawal application by 90% of voting shares। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, ये चीज को आपने अच्छे से याद रखना। फिर आता है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के ऊपर के सवाल। विजडम लिमिटेड कमिट्स अ डिफॉल्ट अगेंस्ट अ डेट टेकन बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर मिस्टर एफ। ये ऑलरेडी हो चुका है ना, ये ऑलरेडी हो चुका है सवाल, रिपीट पढ़ लेना। उसके बाद में व्हाट इज रेजोल्यूशन प्लान, ये भी हो चुका है, मॉड्यूल के अंदर ये सवाल दिया है। मोरेटोरियम और पब्लिक नोटिस के ऊपर सवाल आ रहे हैं, आ जाइए। लेट्स गो। आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ CIRP प्रोसेस, NCLT declared a moratorium against corporate debtor. Within a month of declaration, corporate debtor dispose his property. State the validity. मोरेटोरियम में आप प्रॉपर्टी डिस्पोज नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, अनलेस इट इज ऑर्डिनरी बिजनेस, अनलेस इट इज ऑर्डर्ड बाय गवर्नमेंट, तब तक क्या आप मोरेटोरियम में कोई भी लिटिगेशन या प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते। सो मोरेटोरियम इज अ काम पीरियड ऑफ 180 डेज जो शुरू होगा और खत्म होगा। नीचे क्या क्या बैन है मोरेटोरियम में? इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट एंड कंटिन्यूएशन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, ट्रांसफरिंग, एनकम्बरिंग, एलिनेटिंग और डिस्पोजिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी और लीगल राइट, एनी एक्शन ऑफ फोरक्लोजर एक्सेट्रा, फोरक्लोजर और रिकवर और एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी, रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी बाय ओनर और द लेसोर, ठीक है, ये सब चीजें बैन है। अब आंसर देखते हैं। द ट्रांजैक्शन कॉर्पोरेट डेटर मोरेटोरियम 180 डेज, कमेंसमेंट ऑफ CIRP इज प्रोहिबिटेड, ये ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड है। सो सच एन एक्ट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर इज नॉट वैलिड, ये एक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट M18 का सवाल है। मेसर सिस्टमैटिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड and appellant corporate debtor has challenged the order dated 3rd July 2017 passed by adjudicating authority National Company Law Tribunal Mumbai bench in National Company Law Appellate Tribunal. NCLT had admitted the application preferred by appellant under section number 10 of the CIRP process and ordered the moratorium was passed and insolvency resolution professional was ordered to be appointed by the adjudicating authority. The given only grievance of the appellant, its challenge is that the movable and immovable property of guarantor, promoter has been attached pursuant to a corporate insolvency resolution process initiated under section 10 against appellate of LD. Appellant of LD, that is adjudicating authority, which is in violation of section 14C of the insolvency bankruptcy code. प्रमोटर जो गारंटर था उसके पर्सनल प्रॉपर्टी आपने अटैच की है, ये पिटिशन किया गया था। अब मुझे तो प्रमोटर की पर्सनल प्रॉपर्टी आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो रिगार्डिंग अटैचमेंट? तो इसके लिए केस हुआ था, मैं केस को अंडरलाइन करता हूं। श्वेज सर सिस्टमैटिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस फिनिक्स ARC ओवरसीज, इसको मैं स्टार मार्क करता हूं। प्लीज एक बार इसके आंसर को रीड कीजिए। ऐसे सवाल पूछते हैं लेटेस्ट केस लॉस के अंदर, इसको हमने कवर करना है, ठीक है। तो इस आंसर को रीड कीजिए, स्टार मार्क क्वेश्चन है, इसको पढ़ना ही चाहिए। और देखिए क्या आंसर आ रहा है।
चलो डन। ये सवाल के बाद अगला सवाल डायरेक्ट है, इस सवाल को आपने स्टार मार्क कर लिया सबने, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क। मॉड्यूल के अंदर सवाल दिया था वो हमने ले लिया, ऑर्डर ऑफ मोरेटोरियम। अगला सवाल, यू आर अपॉइंटेड एज इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इन XYZ लिमिटेड अंडर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, सेट द टाइम लिमिट टू मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट, also state the protocol for issuance of public notice, what shall be the expenses of public announce, who shall bear the expenses। तो expenses के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि एक्सपेंसेस बियर किए जाते हैं पब्लिक अनाउंसमेंट के। देखिए यहां पे द एक्सपेंस पब्लिक अनाउंसमेंट आर बोर्न बाय अप्लीकेंट विच मे बी रिइंबर्स्ड बाय कमिटी ऑफ क्रिएटर्स। अप्लीकेंट करेगा, सीओसी उसको रिफंड करेगा, यह आज ही हमने लिखा था। अगला, ड्यूटीज ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अच्छा, ये डायरेक्ट सवाल था इसके पहले का, इसलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर मध्यम was appointed as interim resolution professional during a corporate insolvency resolution process. What are the duties to be performed by Mr. Madhyam in given capacity? Duties of interim resolution professional, ये भी डायरेक्ट सवाल है, ऑलरेडी हमने इसको देखा हुआ है, चाहिए तो एक बार रीड कर लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। ड्यूटीज ऑफ IRP हमने देखा है ना, पढ़ लीजिए एक बार। चलो डन। अगला सवाल मॉड्यूल का है। मिस्टर जेड वॉज कंटिन्यूइंग एन इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इन अ कंपनी, द कमिटी ऑफ क्रिएटर्स मेजॉरिटी ऑफ वोट ऑफ फाइनेंशियल क्रिएटर प्रपोज टू अपॉइंट मिस्टर फाइनल एज अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, द सेड प्रपोजल वॉज कंफर्म्ड बाय बोर्ड आफ्टर 10 days, स्टेट वेदर मिस्टर फाइनल इज अपॉइंटेड एज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। हाँ, लेकिन यहां बोला है इन्होंने मेजॉरिटी ऑफ फाइनेंशियल क्रिएटर, मेजॉरिटी ऑफ वोट, अगर मेजॉरिटी वोट है 51% तो नहीं होगा, 66% वोटिंग चाहिए। दूसरी बात, 10 days बाद अगर IBBI ने बोर्ड ने अप्रूव किया है तो जब तक 10 days एक्सपायर नहीं होते हैं, जब तक अपॉइंट नहीं होता, IRP विल वर्क फॉर दिस केस। ठीक है, यह चीज को आपने अच्छे से याद रखना। तो देखिए आंसर क्या है। No, as per the code, board does not confirm the proposed name of RP within 10 days of receipt of proposal. The adjudicating authority shall direct IRP to continue as a RP for such a time as the board will confirm the appointment of RP. यही चीज हमने लिखी है, लेकिन यहां पे हम assumption ले रहे हैं, assumed COC pass 66% वोट,
ये हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, ये चीज को आपने याद रखना, ठीक है। अगला सवाल, Continental Rubber Limited, a supplier of a raw material to a Smooth Latex Limited, it filed a petition before NCLT for recovery of 10 lakh for Smooth Latex Limited. From Smooth Latex Limited. Smooth Latex Limited, the corporate debtor has another other financial creditor to the extent of 1 crore 50 lakh, and they also joined together and filed a petition to NCLT. The corporate debtor has total 40 financial creditors and 2 operational creditors. Further, all the financial creditors are having equal voting shares. Notice was issued on 1st August 2018 for conduct of the first meeting to be held on 5th August 2018 at the common venue. The meeting was attended by all 40 financial creditors, 2 operational creditors. The resolution was passed by appointed by TK as a resolution professional. 25 financial creditors voted in the favor of the resolution. Voted in favor 25. 40 में से 25 वोट किए, and 10 voted against the resolution, and 5 financial creditor and 2 operational creditor abstained from voting. Decide whether the resolution is passed is valid or not. मेजोरिटी ने पास किया है 40 में से, और 10 और 2 का ऑपरेशनल क्रेडिटर का तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि ऑपरेशनल क्रेडिटर तो वैसे भी वोट नहीं कर सकते मीटिंग के अंदर, हालांकि उनको नोटिस ही क्यों दिया, अगर उनका डेट 10% से ज्यादा है तो नोटिस देना है। ठीक है, फिर यहां पे फर्स्ट मीटिंग के बारे में मैंने लिखा है सब कुछ, कोरम ऑफ मीटिंग वगैरह सब लिखा है। थ्री डेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर, 3 दिन में होल्ड किया, सो वैलिड है। कोरम रिक्वायर्ड वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग, इसलिए भी वैलिड है, इसलिए भी कोरम की प्रोविजन रिक्वायर्ड है। 66% फाइनेंशियल क्रेडिटर्स वोट फॉर रेजोल्यूशन, हाउएवर गिवन इज 71% वोटेड इन फेवर ऑफ टीके, हेंस सेड अपॉइंटमेंट इज वैलिड। ठीक है, हालांकि ऑपरेशनल क्रेडिटर को गिनेंगे नहीं, तो यहां पे एक नोट ऐड करना, ओसीज वोट एनीवेज नॉट कंसिडर्ड, ये लिखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 मॉड्यूल का, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान विद रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी बाय मोर देन 50% ऑफ वोटिंग शेयर्स of financial creditor. State whether a decision given on the resolution plan is binding on all corporate debtor, all its creditors. So, committee of creditors approved the resolution plan with respect of management of affairs of the company by more than 50% voting shares. ठीक है, सीओसी ने मोर देन 50% वोटिंग शेयर से किया और फाइनेंशियल क्रेडिटर 50% से होता नहीं है ना, हमें 66% चाहिए रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव करने के लिए। सो नो, एज पर द कोड रेजोल्यूशन प्लान शॉल बी अप्रूव्ड बाय कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स वोट नॉट लेस देन 66% ऑफ द वोटिंग, ये चीज को आपको समझना जरूरी है। अगला, रामलाल इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल वाज अपॉइंटेड एज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इनिशिएटेड अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटर Montec Limited. Mr. Ramlal is a partner of consulting firm Supervision and Company, which is entity recognized under IBBI. It was discovered that Mr. Supervision and Company had a transaction with the Montec Limited amounting to 11% of the gross turnover. Analyze given situation, insolvency bankruptcy code, validity of appointment of Mr. Ramlal. क्या Mr. Ramlal यहाँ पे resolution professional बन सकता है? नहीं। Disqualifications of resolution professional में लिखा है कि you should not be involved or a partner of any of the firm who receives 10% of turnover from the corporate debtor, और यहां तो 11% of the turnover रिसीव किया है, तो क्या मिस्टर रामलाल यहां क्वालिफाइड है? तो यहां पे देखना, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के लिए काफी सारे प्रोविजंस लिख के रखे हैं। सो यहां पे देखना, Mr. Ramlal, being a partner of the firm, made a transaction for more than 5% of the gross turnover of the firm in previous financial year. So his appointment of resolution professional Montec Limited is not valid. यहाँ पे 10% चाहिए, 5% नहीं 10%, इस चीज को याद रखना। What is the eligibility criteria for appointment of insolvency resolution professional and resolution professional for corporate insolvency resolution process? क्या eligibility criteria है? तो देखो, he is eligible to be appointed as independent director, not a related party to corporate debtor. He is not an employee proprietor partner of the firm of auditors or secretaries in practice or cost auditors in last 3 financial year, और 10% तक के उसका
टर्नओवर के अंदर हिस्सा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये भी चीज बोल दी, यहां 10% लिखा हुआ है, मॉड्यूल में कई जगह पे डिस्प्यूटेड है, एक जगह पे मॉड्यूल में 5% लिखा है, दूसरे बेयर टेक्स्ट में 10% लिखा है, तो आपने इसको 10% ही मानना है। ये चीज कंफर्म है, मॉड्यूल में हो सकता है इसको 5% लिखा हो ओल्ड में, लेकिन 10% ही मानना है। अगले सवाल पे जाते हैं। द कमिटी ऑफ क्रिएटर्स ऑफ मेसर्स XYZ लिमिटेड possess proposed to appoint Mr. Ajit as insolvency professional as IRP in the matter of corporate insolvency resolution process of XYZ Limited. Mr. Ajit was promoter of ABC Limited, which is a holding company of XYZ Limited. तो ऑब्वियस सी बात है डिस्क्वालिफाइड, क्योंकि होल्डिंग कंपनी का प्रमोटर एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं चलता, ये आईडी का डिस्क्वालिफिकेशन है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स डिस्क्वालिफिकेशन। जब आपका कंपनीज एक्ट हो जाएगा ना, तो आपको ये डिस्क्वालिफिकेशन समझ में आएगा, फर्स्ट रिवीजन के वक्त जब आप रिवाइज करोगे उस वक्त समझ में आएगा, ठीक है, थर्ड रिवीजन वगैरह के वक्त आपको ये समझ में आएगा, ये चीज को याद रखना। ऑफ होल्डिंग कंपनी, Ajit is related party to corporate debtor, therefore Mr. Ajit is not eligible for appointment because he is disqualified to be ID. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मॉक टेस्ट पेपर अक्टूबर 19 का सवाल है। पीक्योर लिमिटेड इज लिस्टेड एंटिटी विच इज सब्सिडरी ट्विंग लिमिटेड। स्टेट द कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट विच रिस्पेक्ट ऑफ सब्सिडरी लिस्टेड एंटिटी एज पर द सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस। अब ये सेबी एलओडीआर का क्वेश्चन यहां कहां से आया? ये सेबी एलओडीआर का है, गलती से क्वेश्चन यहां आ गया होगा, ठीक है, सो इसका यहां कोई रिलेवेंस नहीं है। यहां कहां से आ गया समझ में ही नहीं आया। ओके, दो सवाल बाकी है, आ जाइए। व्हेन कैन अ कॉर्पोरेट पर्सन इनिशिएट वॉलेंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस? अरे वाह, क्या बात है। मिस्टर एक्स रिजोल्यूशन प्रोफेशनल लिक्विडेशन प्रोसेस ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्पोरेट डेटर फाइंड्स दैट ट्रांजैक्शन वाज मेड बाय कॉर्पोरेट डेटर टू हिज रिलेटेड पर्सन, टू हिज रिलेटिव 6 months प्रीसीडिंग CIRP। मतलब प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन भी है, अच्छा सवाल है, मतलब स्टार मार्क। प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है, स्टार मार्क। State the validity of conduct of such a transaction by corporate debtor or his relative. What will be consequences when resolution professional determines such a transaction undervalued and fails to report to NCLT? resolution professional नहीं करता है तो क्रेडिटर मेंबर तो रिपोर्ट कर सकते हैं, और ऐसे केस में resolution प्रोफेशनल के खिलाफ भी प्रोसीडिंग करेगा IBB, ठीक है। तो इसका एक बार आंसर पढ़ो, क्वेश्चन अच्छा है।
चलो पढ़ लिया है सबने, ये सुनो। ओके, ये होने के बाद लास्ट क्वेश्चन आता है आईबीसी का। क्वेश्चन देख के ही समझ में आता है, प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट्स का क्वेश्चन है। ओके, द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेट्स टू अ बिग रेमी प्राइवेट लिमिटेड विच हैज गॉन थ्रू सीआईआरपी प्रोसेस। अमाउंट रियलाइज फ्रॉम लिक्विडेशन ऑफ एस्टेट, सिक्योर्ड क्रेडिटर हु हैज रिलिंक्विश्ड द राइट्स ऑफ द सिक्योरिटी, अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, इनकम टैक्स पेएबल, उसके बाद में सेस पेएबल, फीस पेएबल टू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, एक्सपेंसेस इनकर्ड टू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, वर्कमैन सैलरी पेएबल। अच्छा, सबसे पहली बात, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ लिक्विडेशन एस्टेट 14 लाख, सिक्योर्ड क्रेडिटर हु हैज रिलिंक्विश्ड द सिक्योरिटी 5 लाख, 14 और 5 19 लाख ये हो गए। अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर बाद में, इनकम टैक्स पेएबल विद इन पीरियड ऑफ 2 years, ठीक है, सेस पेएबल टू गवर्नमेंट, ठीक है, एक्सपेंस इनकर्ड बाय रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये हुआ कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन। सिंपल है आंसर, ठीक है। सबसे पहली बात क्या क्या लेंगे हम, फीस पेएबल टू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फर्स्ट 75,000, एक्सपेंस इनकर्ड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल दूसरा, वर्कमैन सैलरी ऑफ 24 months, बैलेंस 60,000 इज कंसिडर्ड एज रिमेनिंग डेट्स ड्यू विद द सेटल्ड बिफोर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, मतलब अदर ड्यूज के अंदर कंसिडर किया जाएगा। Secured creditor who has relinquished the rights 5 lakh security, unsecured financial creditors 4 lakh, income tax payable 50,000, sales to government 20,000, balance amount of workman salary 60,000, total distribution 13 lakh 70,000, amount realized from liquidation estate 14 lakhs, game over, balance available for equity shareholder on pro rata basis 30,000, ठीक है। what is fast track insolvency resolution process का सवाल है। As on March 31st, the audited balance sheet of Messer Sharp Industries Limited revealed a total asset of 1 crore. In the capacity of corporate debtor, filed an application with adjudicating authority initiation of fast track CIRP. Whether the application made by Sharp Industries for initiating fast track CIRP क्या ये लिमिट में है, क्योंकि उन्होंने उनके टोटल एसेट 1 करोड़ दिखाए हैं, ठीक है। टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच द एक्सटेंशन ऑफ टाइम विद इन विच फास्ट ट्रैक सीआईआरपी शुड बी कंसिडर्ड। तो हमने ऑलरेडी देखा है कि फास्ट ट्रैक सीआईआरपी किस किस के लिए अवेलेबल है, आ जाइए। सो ये अज्यूमिंग इट इज अनलिस्टेड कंपनी, लिस्टेड होता तो एफटीसीआरपी नहीं होता था, इज एन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 55, क्लियर है। और फिर एफटीसीआरपी का पूरा प्रोसेस लिखा गया है, समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। कि चल रहा है, लास्ट क्वेश्चंस नहीं और भी सवाल है, अरे वाह और भी सवाल है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो ये हो गया सबका, एक बार उसका आंसर रीड कर लीजिए, एफटीसीआरपी का आपको याद होना चाहिए।
चलो डन एवरीबॉडी, अगले सवाल पे जाते हैं, वॉलेंटरी लिक्विडेशन। सो व्हेन कैन अ कॉर्पोरेट पर्सन इनिशिएट अ वॉलेंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस? आपको ऑलरेडी पता है, डेथ्स ड्यू नहीं होनी चाहिए, असेट्स मोर देन लायबिलिटीज होनी चाहिए, लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैल्यूएशन के हिसाब से, बोर्ड का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, जनरल मीटिंग का स्पेशल, अगर वॉलेंटरी करना है, समय खत्म हुआ है तो ऑर्डिनरी, इवेंट कंप्लीट हुआ है तो भी ऑर्डिनरी, और 7 डेज के अंदर आपने क्रेडिटर्स का 2/3 अप्रूवल लेना है 66.67%। बोर्ड से जनरल मीटिंग के रेजोल्यूशन का जो समय है वो है 4 वीक्स का, ये आपने कर दिया, 7 डेज के अंदर फाइलिंग कर दो, आपका वॉलेंटरी लिक्विडेशन हो जाएगा। यही प्रोसेस आपको यहां पे लिखना है। अगला सवाल, एक्स लिमिटेड वॉज इंटेंडिंग to initiate voluntary liquidation process. A declaration was made on an affidavit, the sum of the directors of X Limited verifying full inquiry of the affairs of the company. They gave opinion that company will be able to pay its debts in full form, proceeds of the asset be sold in the voluntary liquidation. Analyze a given situation, comment whether X Limited can initiate a voluntary liquidation process. बिल्कुल कर सकते हैं, yes, कोई दिक्कत नहीं। What are the required documents to be accompanied with the declaration? Audited financial statement चाहिए, valuation report चाहिए, ये चीज को आपने याद रखना, ठीक है। आंसर एक बार चाहिए तो रीड कर सकते हो, लंबा चौड़ा आंसर दिया है, पूरी प्रोसेस ही ठोक दी है इसके अंदर, बहुत बढ़िया। एक बार आंसर रीड कर लो, चाहिए तो गो फॉर इट फास्ट। वॉलेंटरी लिक्विडेशन भी रीड किया वो होना चाहिए। रीड कर लिया सबने, आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल, बीडीएल के लिमिटेड डिसाइडेड टू गो फॉर वॉलेंटरी वाइंडिंग अप एंड अकॉर्डिंगली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी अप्रोच्ड board about to take a necessary step to initiate a winding up proceeding. The board of director of a company approached you for the guidance in this regard. Please list out the steps required under insolvency bankruptcy code before approval of liquidation process with specified reference. मतलब डायरेक्ट सवाल ही है, जो मैंने आपको बोला वैसा का वैसा ही आपको लिखना है, ठीक है। अगला सवाल, मॉक टेस्ट October 19। X Limited was intending to initiate a voluntary liquidation proceeding. A declaration was made on affidavit of the sum of the directors of X Limited verifying full inquiry of the affairs of company. Company will be able to pay its debts. अभी अभी हुआ ना, रिपीट सवाल, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगला, The following particulars are related to Star House Limited. सेम सवाल है, नियरली रिपीट है। प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट्स के लिए इसको आपने सॉल्व करना, होमवर्क दूंगा ही मैं इसको ऑब्वियसली। खत्म, ओके। सो यहां आईबीसी के सभी क्वेश्चंस खत्म होते हैं, ठीक है। सबसे पहले
आईबीसी के क्वेश्चन खत्म होते हैं तो आज का होमवर्क ले लीजिए और कल का होमवर्क आपने सॉल्व किया क्या उसके लिए सोल बुक निकाल लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। गो फॉर द सोल बुक फर्स्ट थिंग। गो फॉर द सोल बुक और तीनों सवाल सॉल्व कर लीजिए फटाफट। चलो तीनों सवाल सॉल्व कर लिए, ये सुनो सोल बुक के। नाउ आज का होमवर्क मैं दे रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट सवाल अच्छा था, सो इसको अपन बुक करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व करना है एज ए होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 2। और दूसरा सवाल, सेकंड सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये दोनों सवाल आपको सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। मैं इसको स्टार मार्क करके रखता हूं, ये दोनों हमको रीड भी करने हैं और सॉल्व भी करने हैं, ठीक है। ओके, ये आज का होमवर्क रहा। अब आप प्रिपेयर हो जाइए मेडिटेशन के लिए। यहाँ आपका आईबीसी खत्म होता है। आई गेस सेकंड चार्ट आपने आईबीसी का बना लिया होगा कल ही। आज आपको पूरा आईबीसी का लॉन्ग चार्ट बनाना है घर पे आराम से, तो टेंटेटिवली हाफ आवर लग जाएगा। तो आज हाफ आवर, वैसे भी लेक्चर जल्दी खत्म हो रहा है तो यू कैन यूटिलाइज दैट, ठीक है। ओके, फिलहाल मैं चाहूंगा कि यू गो विद द सिचुएशन और मेडिटेशन के लिए रेडी हो जाइए, ठीक है। गो फॉर इट फास्ट। नेचुरल ब्रेथ पे ध्यान दीजिए। सो आप सब चीजें छोड़ के मेडिटेशन में आ जाओ थोड़ा सा, फिर मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगा। नेचुरल ब्रेथ पे ध्यान दीजिए। नेचुरल ब्रेथ को देखिए 1 मिनट तक। नेचुरल ब्रेथ पे ध्यान। ओके, कीप फोकस्ड ऑन द आईब्रोज। जब मैं बोलूंगा आई एम नॉट अ बॉडी, यू हैव टू इनहेल मीडियम साइज। आई एम नॉट अ माइंड, यू हैव टू एक्सेल। और ये थॉट भी देना है। सो रेडी, 1 2 3 गो। आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड। आई एम नॉट अ बॉडी, इनहेल। आई एम नॉट इवन द माइंड, एक्सेल। आई एम नॉट अ बॉडी, कॉन्सेंट्रेशन बिटवीन आईब्रोज। I am not even the mind. Thought देना है खुद को. I am not a body. Inhale, concentration. I am not a mind. Exhale, thought देना है. I am not a body. Inhale. I am not even the mind. Exhale. I am not a body. Concentration between eyebrows.
आई एम नॉट इवन द माइंड, थॉट देना है खुद को. आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड. आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड. I am not a body, I am not even the mind. I am not a body, I am not even the mind. I am not a body, I am not even the mind. I am not a body, I am not even the mind. I am not a body, I am not even the mind. I am not a body, I am not even the mind. I am not a body, I am not even the mind. I am not a body, concentration between eyebrows. I am not even the mind, thought देना है खुद को. I am not a body, concentration between eyebrows. I am not even the mind, thought देना है खुद को. I am not a body, inhale. I am not even the mind, exhale. I am not a body, inhale. I am not even the mind, exhale. I am not a body, thought देना है खुद को. I am not even the mind, concentration between eyebrows. I am not a body, I am not even the mind. I am not a body, I am not even the mind. I am not a body, I am not even the mind. I am not a body, I am not even the mind. I am not a body, I am not even the mind. I am not a body, I am not even the mind. I am not a body, concentration eyebrows पे. I am not even the mind, thought देना है खुद को. I am not a body, inhale. I am not even the mind, exhale. I am not a body, I am not even the mind. I am not a body, I am not even the mind. I am not a body, I am not even the mind. I am not a body, I am not even the mind. I am not a body, I am not even the mind. I am not a body, I am not even the mind. I am not a body, I am not even the mind. I am not a body, I am not even the mind. I am not a body, थॉट देना है खुद को. I am not even the mind, concentration eyebrows में. I am not a body, inhale. I am not even the mind, exhale. I am not a body, inhale. I am not even the mind, exhale. I am not a body, I am not even the mind. I am not a body, I am not even the mind. I am not a body, I am not even the mind. I am not a body, I am not even the mind. I am not a body, I am not even the mind. I am not a body, I am not even the mind. I am not a body, I am not even the mind. I am not a body, I
I am not even the mind. I am not a body. I am not even the mind. I am not a body. Concentration eyebrows में. I am not even the mind. I am not a body. I am not even the mind. I am not a body. I am not even the mind. I am not a body. I am not even the mind. Stop. Now inhale fully. आंखें बंद, मूवमेंट नहीं करना है. आंखें बंद. Inhale fully. 1 2 3. Say स्टमक को वाइब्रेट करना है. लो पिच का आ बोलना है और वाइब्रेटिंग आ बोलना है. रेडी? टेक अ फुल ब्रेथ. गो. Take a full breath. Go. Vibrate your belly button below 2 fingers. Take a full breath. Go. Take a full breath. Go. Take a full breath. Vibrate your stomach. Go. Last one, make it longer. Go. Stop. आंखें बंद, मूवमेंट नहीं करना है. टर्न हेड अपवर्ड्स. कॉन्सेंट्रेशन आईब्रोज में वापस आना चाहिए. इसके अंदर हेड को सेट कर लो थोड़ा सा मूवमेंट करके. टर्न हेड अपवर्ड्स. कॉन्सेंट्रेशन आईब्रोज में आना चाहिए. हेड को सेट कर लो. नाउ जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रेथ. ना जानबूझ के सांस लेनी है, ना जानबूझ के सांस छोड़नी है. एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सिर्फ नेचुरल ब्रेथ को देखना है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कोई थॉट आता है, नेक्स्ट बोलना है, वापस नेचुरल ब्रेथ को देखना है और कॉन्सेंट्रेशन आईब्रोज में होना चाहिए. ठीक है? यू जस्ट ट्राई फॉर इट. फर्स्ट मेडिटेशन में होगा ये जरूरी नहीं है. यू कीप ऑन ट्राइंग फॉर दिस. हेड टर्न अपवर्ड, कॉन्सेंट्रेशन आईब्रोज में, ब्रेथ की तरफ ध्यान दीजिए. ब्रेथ को देखिए, कॉन्सेंट्रेशन आईब्रोज में.
साइलेंस को महसूस कीजिए, ब्रेथ पे ध्यान, कंसंट्रेशन आईब्रोज में ही रहेगा। साइलेंस को महसूस कीजिए। कंसंट्रेशन आईब्रोज में ही रहेगा। स्लोली अब दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रब कीजिए, आराम से आंखें खोलिए। फ्रेश लग रहा होगा? वेरी गुड। आज हम एक नई स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं और आज की जो हमारी स्टोरी है वो है डॉक्टर प्रीथा रेड्डी की। यू आर नॉट फीलिंग वेल, आई गेस, लेट हर हील यू। सो जैसे भी कोरोना वायरस के अंदर एज वी हैव सीन कि काफ़ी सारे डॉक्टर्स आर द वॉरियर्स, कोरोना वॉरियर्स जिसको हम कहते हैं, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द नॉट कोरोना वॉरियर्स बट वेरी गुड डॉक्टर जिनके बारे में ये स्टोरी है। सो आपने शायद इनका नाम नहीं सुना होगा बट लेट्स अंडरस्टैंड द स्टोरी। इंडिया हैज़ गिवन अ बर्थ टू अ ग्रेट बिजनेसमैन एंड बिजनेस वुमेन and Dr. Pritha Reddy is one of them. She is not only managing director of Apollo Hospitals. Apollo Hospitals सुना है? She is MD. But she is also one of the pioneer businesswomen in Indian healthcare industry. Dr. Pritha Reddy is responsible for operations of Apollo Hospital Group and works closely with healthcare practitioners at Apollo Hospital to come up with contemporary protocols and raise the bar on the clinical outcomes. Dr. Pritha Reddy took guidance from her father, Dr. Pratap C. Reddy, who is a pioneer of corporatized healthcare in a country, and joined Apollo Hospital as Joint Managing Director in 1989. In this position, she worked hard to enhance the competitiveness of Apollo Hospital, and in 5 years, she became a Managing Director of the Apollo Hospital. As a Managing Director, she spearheaded the growth of Apollo Hospital and quaternary and tertiary care hospital and primary care of diagnostic primary clinics, sorry I'm mispronouncing it, and took the healthcare consulting business process, operation and healthcare technology services to whole new level. Apart from carrying out her duties as a managing director of the Apollo Hospital, Dr. Pritha Reddy works closely with the government and industry bodies to shape the policies related decisions or key healthcare issues. Under Dr. Pritha Reddy's leadership, Apollo Hospital come up with a Save a Child's Heart initiative where 5,000 surgeries have been performed on children suffering from heart diseases. Dr. Pritha Reddy is also responsible for development of Apollo Isha Vidya Rural School, which focuses on overall development of child in the rural areas. For her outstanding work and contribution to the healthcare sector, Dr. Pritha Reddy has been ranked in an international list of 50 most powerful women in business, compiled by Fortune for 3 consecutive years, 2009, 10, 11. In addition, she has been included in her list of the most powerful women in the business, compiled by the Fortune India for 11, 12, and 13, for foresight and contribution to the field of healthcare and social science. Dr. Pritha Reddy received a Lifetime Achievement Award from the Loyal Forum of the Historical Research. Dr. Pritha Reddy became successful in life because she had a clear purpose and was certain about her goals. She was determined to enhance the field of healthcare in India, and she did that despite of challenging life. Even after gaining success, she did not forget about underprivileged in the society. Not only did she come up with healthcare initiatives to cure the disease, but also establish educational programs for the poor. This is what we should learn from Dr. Pritha Reddy. No matter how successful we are, we should think about how we can help the poor. In addition, we should always follow our dreams and never lose a track of our goal despite the difficulties and the challenges. ये डॉक्टर प्रीथा रेड्डी का स्टोरी था. आई होप आपको स्टोरी पसंद आया होगा. शी इज नॉट दो फेमस बट अपोलो हॉस्पिटल काफी फेमस है. शी हैज टेकन अ हेल्थ केयर एजुकेशन इनिशिएटिव्स. काफी सारी चीजें इन्होंने की है इनके डैड के थ्रू जिन्होंने ये हॉस्पिटल सेटअप किए थे. स्टिल एन इंस्पायरिंग स्टोरी. अगर आपके घर पे कोई सीए की प्रैक्टिस है और आप उसको बढ़ाना चाहते हो, यू कैन टेक सम रेफरेंस फ्रॉम हर. और अगर आपके घर पे नहीं है तो आप एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस सेट कर सकते हो या बिजनेस भी सेट कर सकते हो. सो दिस इज अ स्टोरी फॉर दैट, टू हाउ टू कैरी अ सिचुएशन. डेडिकेशन, लगन, मेहनत हर जगह पे लगी रहती है.
यहां पे भी लगेगी, ये चीज को आपने याद रखना। दिस दर्शन खरे साइनिंग आउट, स्टोरी को याद रखना। गुड डे, गॉड ब्लेस यू बेटा, टेक केयर।